નમસ્કાર, મારું નામ દક્ષેશ વાણિયા છે. આજે અમારી સમાનતા ફાઉન્ડેશન દ્વારા એક લીગલ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે ભવન્સ કોલેજ ખાનપુર ખાતે, જેમાં લગભગ અમદાવાદ, ગુજરાતના અલગ અલગ શહેરો, ભાવનગર, બરોડા, રાજકોટ, જામનગરથી લગભગ 120 વ્યક્તિઓએ હાજરી આપેલી છે. જેમાં પીડિત વ્યક્તિઓ, એમના કુટુંબીજનો, માતાઓ, બહેનો પણ ઘણી સંખ્યામાં હાજર હતા. આ સેમિનાર કરવાનો ઉદ્દેશ અમારો એ હતો કે આજે સમાજની અંદર કાયદાનો દુરુપયોગનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધી રહ્યું છે. જેમાં અત્યારે આપણે હાલના કેસમાં જોઈએ તો અતુલ સુભાષ છે, પુનિત ખુરાના છે, એ સિવાય બી ઘણા બધા કેસીસ. આપણે રિસેન્ટલી ખ્યાલ હતો, હમણાં જે કેસીસ થયો છે ઉત્તર પ્રદેશનો, મુસ્કાન સૌરભ સાહિલવાળો જે કેસ ચાલે છે, જેની આખા દેશમાં અત્યારે રીલ્સ ને જે ખ્યાલ આવે છે, જેનાથી અત્યારે પુરુષ વર્ગ ઉપર પણ અત્યાચાર અને પ્રતાડનાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. તો એનો અવેરનેસ લાવવા માટે, કાયદાનો જે દુરુપયોગ થયો છે એને લોકોને અવેરનેસ કરવા માટે, કાયદાના દુરુપયોગની સામે કેવી રીતે તમારે કોર્ટમાં તમારું મેટરને ફાઇટ કરીને જીતવું, અને કાયદાના દુરુપયોગના સંદર્ભમાં બધાને એક લીગલ નોલેજ મળી રહે એ માટે મેં આ એક કાયદાનું સેમિનારનું આયોજન અહીંયા અમદાવાદમાં ભવન્સ કોલેજ ખાતે કરેલું, જેના ઘણા બધા વ્યક્તિએ લાભ લીધો અને બધાને ઘણું જ ફાયદાકારક રહ્યું આવ્યું. અને બસ આ જ અમારી સમાનતા ફાઉન્ડેશનનું જે નામ જ છે સમાનતા, ઇક્વાલિટી. અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે દેશમાં લોઝ પણ જેન્ડર ન્યુટ્રલ બને, જેથી કરીને જે સમાનતા ખરા અર્થમાં બંને વર્ગોમાં રહે. અને એક આપણું જે ફેમિલી સ્ટ્રક્ચર છે, જે ઇન્ડિયન જે લગ્ન સંસ્થા જે હાલ ડાયવોર્સના કારણે તૂટી રહી છે, જેનું એ પ્રમાણ પણ ઘટે, એવું અમે સરકાર પાસે આશા રાખીએ છીએ કે ભાઈ આ દેશમાં કાયદાઓ જેન્ડર ન્યુટ્રલ બનાવવા આવે, અને જેથી કરીને આવું જે દેશમાં ડાયવોર્સનું પ્રમાણ છે ઘટે અને લોકોને ન્યાય મળે. ખરા અર્થમાં સમાનતા જે આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશન આપણને આપ્યું છે એ રિયલ સાર્થક થાય. એટલે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે કાયદાઓ જેન્ડર ન્યુટ્રલ બનાવવા આવે, અને સ્ત્રી આયોગની જેમ ટ્રી માટે કમિશન છે, એવી રીતે મેન્સ માટે પણ કમિશન, મેન્સ કમિશનનું આયોજન કરવામાં આવે, એવી અમે આ ઇવેન્ટના માધ્યમથી નાનકડો એક મેસેજ સરકારને આપવા માગીએ છીએ, અને એક જેન્ડર ન્યુટ્રલ લોઝ બને એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ સરકાર પાસેથી. भारत माता की जय, भारत माता की जय. We want men's commission. we want men's commission. शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है. शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है. हम लोग दिल्ली मेन वेलफेयर ट्रस्ट से आए हैं और आज यहाँ पर समानता फाउंडेशन ने अहमदाबाद में एक लीगल सेमिनार का आयोजन किया था. ये लीगल सेमिनार बहुत ही सक्सेसफुल रहा. गुजरात में दूर दूर से यहाँ पर हमने देखा कि लोग आए हुए हैं. अब सवाल ये है कि कौन लोग यहाँ पर आए हुए हैं. यहाँ पर वो सारे पुरुष जो कि जेंडर बायस कानूनों के दुरुपयोग से पीड़ित हैं, जो फॉल्स केसेस से जूझ रहे हैं, जिनके ऊपर झूठे दहेज के, झूठे मेंटेनेंस के, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के या किसी भी तरह के झूठे केसेस फाइल कर दिए जाते हैं, वो सब लोगों के लिए ये सेमिनार का आयोजन किया गया था. सेमिनार में हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इस चीज़ की ट्रेनिंग दी कि जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर एक ब्रोकन मैरिज के चलते एक झूठा केस कर दिया जाता है तो उस केस को आपको कैसे हैंडल करना है. महिला थाने की स्टेज से लेकर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद बेल के क्या प्रावधान है, आपके एज ए अक्यूज क्या राइट्स है, कानून ने आपको क्या अधिकार दिए हुए हैं, और पूरी कानूनी प्रक्रिया के अलावा इन केसेस को कैसे फाइट करना है, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल वेलबींग का कैसे ध्यान रखना है. इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत चर्चा हुई. लोग दूर दूर से आए हुए हैं और उन्होंने अपने पर्सनल केसेस के अपने एग्जाम्पल्स देते हुए अपने सवाल किए, जिसका जवाब यहाँ पर हम लोगों ने दिया. और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह के सेमिनार्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं, अतुल सुभाष का, पुनीत खुराना का, जहां पर पुरुषों के ऊपर झूठे केस कर दिए गए, उनको इतना प्रताड़ित किया गया, ना सिस्टम ने उनको सुनी, ना उनके परिवार में लोगों को समझ थी कि कैसे हैंडल करना है. कोर्ट में जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं है, थाने में जाते हैं तो उनके लिए सुनवाई नहीं है, कानून में उनका कोई उनके लिए हल नहीं है. ऐसे में बहुत सारे पुरुष आज आत्महत्याएं कर रहे हैं. हमारी मुहिम इसलिए कि ऐसी आत्महत्याएं को हम कम कर पाएँ, ऐसी आत्महत्याओं को हम रोक पाएँ, हम इन पुरुषों को दिखा पाएँ, सिखा पाएँ
कि अगर आपके ऊपर एक झूठा केस आ गया है तो आप उसको कैसे लड़िए, आप अपनी इनोसेंस को कैसे साबित कीजिए और एक ज़िंदगी एक ऐसी पीसफुल तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से कैसे जिए इन मुसीबतों के बावजूद भी। तो हमारी ये संस्थाएं दिल्ली में जैसे मैन वेलफेयर ट्रस्ट है, यहाँ पे समांता फाउंडेशन है और तमाम हमारी 30-40 NGOs हैं अक्रॉस इंडिया जो कि सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंदर काम कर रही हैं। वो एक हेल्पलाइन रन कर रही हैं इसी चीज़ के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई हेल्पलाइन नहीं है जो कि जहाँ पर एक पुरुष कोई कॉल कर सके, अपनी प्रताड़ना बता सके। सरकार की तरफ से कोई आयोग नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर एक पुरुष अगर प्रताड़ित हो तो जाके अपनी बात रख सके। तो हमारी एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 8882498498। यहाँ पर हमारे को 3 से 5 हज़ार कॉल्स हर महीने आती हैं पूरे देश से, उन लोगों की जो कि प्रताड़ित हैं, जिनके ऊपर झूठे केस कर दिए गए हैं और जो कि अवसाद में हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं इन वजहों से। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जी जान से, दिल से, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मदद कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें। और मैं जो लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये फ्री सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया जो कि लोगों की मदद कर रहा है और इस समाज को एक बैलेंस समाज बनाने के लिए, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, ट्रू सेंस में जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ने के लिए ये लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।